This call is now being recorded. All right, so here we are going to start with the fungi. We are doing the producer, and now we'll start with a new topic. That's your fungi. Okay. So fungi की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो fungi के बारे में like सबसे basic चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है. That's going to be fungi are the one which are going to be having your thread-like structures will have in the fungi, and those thread-like structures in the fungi. अगर आप fungi को observe करते हो तो उसमें हम cells नहीं बोलते हैं. This fungal cells which you have, those cells are have a name, and those filamentous structure you will find in the fungi are called as my hyphae. You call them as a hyphae. And you will have a network of hyphae. आपको hyphae एक नहीं मिलेगा, you will have a network of hyphae you will get to see. चलो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो. Don't enjoy dropping emojis. So you'll have a network of hyphae आपको मिलेगा यहाँ पे आपका, और जब fungi के अंदर आपको मिलेगा आपका network of hyphae यहाँ पे, you will have a network of hyphae जो आपको यहाँ पे मिल जाता है. This complete network of hyphae is called as my mycelium. This is something which will be called as your mycelium. ठीक है, तो याद रखना फंगाई के अंदर बेसिक चीज याद रखना दैट फंगाई विल हैव अ बॉडी व्हिच विल हैव द हाइफे एंड दिस नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माय माइसेलियम. अब जब मैं यहाँ पे हाइफे की बात कर रहा हूँ, सो हाइफे ये जो आपके यहाँ पे फंगल सेल जिसे मैं यहाँ पे अभी सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ, इधर दे कैन हैव अ सेप्टा और दे कैन नॉट हैव अ सेप्टा. सो दिस हाइफे इधर दे विल हैव अ क्रॉसवॉल फॉर्मेशन, इधर या फिर इनके अंदर क्रॉसवॉल आपको मिलेगी यहाँ पे, और कुछ हाइफे होते हैं कुछ फंगाई के अंदर जिनके अंदर आपको क्रॉसवॉल आपको नहीं मिलती. तो अगर आपको क्रॉसवॉल मिल रही है देन वी कॉल देम एज अ सेप्टेट हाइफे. We call them as a septate hyphae. If the crosswall is not seen, समझो यहाँ पे एक मेरा hyphae है जिसके अंदर आपको crosswall आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, then you can call them as a aseptate. You can call them as a aseptate, or we can call them as a cenocytic. Cenocytic. ये दो टर्म आप यहाँ पे याद रखना. Now fungi will also have the nuclei. भूलना मत, fungi will also have the nuclei in them. So you will have the nuclei in the fungi. So number of nuclei can be seen. अगर आपके सेप्टा फॉर्मेशन नहीं है then आपके न्यूक्लिया आपके ऐसे आपको वहां पे मिल जाएंगे. Okay. Now when we talk about fungi, there are few things you already know that they will have a cell wall. They will always have a cell wall made up of my chitin. They will be storage. Storage जो करेगा ये यहाँ पे अपने खाने का, that storage will be done in terms of my glycogen. So fungi are going to store food in terms of my glycogen. Fungi are always going to be my heterotrophs. Fungi आपके हमेशा आपके यहाँ पे रहेंगे आपके heterotrophs. याद रखना है आपको ये इसलिए because fungi जो आपके होते हैं ना, they cannot make their own food. Plant तो है नहीं है, अपना खाना खुद से बनाएगा नहीं. So they either feed on some other organisms. Generally they are going to be saprophytic. Majority of the fungi are going to be my saprophytic. याद रखना. Majority of the fungi are going to be saprophytes. And then you can have some fungi which can show parasitic mode of nutrition as well. कुछ fungi हो सकते हैं जो आपके parasitic mode of nutrition show करें. कुछ fungi होते हैं which are going to show the symbiosis. Some fungi can also show the symbiosis. That means एक interaction जहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है. दो interaction कर रहे होते हैं यहाँ पे organisms and both of them are getting benefited. Such kind of interaction is called as my symbiosis. तो symbiosis करते हुए भी आपको ये मिल सकते हैं. You can also find that happening to the symbiosis. ठीक है. सो याद रखना ये सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन. स्टोरेज आपके यहाँ पे होता है ग्लाइकोजन का. हेटेरोट्रॉप्स आते ही, दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स. दे कैन बी सेप्रोफाइट, दे कैन स्टोर द सिम्बायोसिस, दे कैन आल्सो एज आई टोल्ड यू कैन बी अ पैरासाइटिक एज वेल. दे कैन बी पैरासाइटिक. डिजीज भी कॉज करते हैं यू, दे कैन आल्सो कॉज डिजीज. ओके. रिप्रोडक्शन आपके यहाँ पे दोनों तरीके आपके यहाँ पे हो जाते हैं. यू विल हैव अ असेक्सुअल वन एज वेल. सेक्सुअल वन भी आपको मिलेगा यहाँ पे, वो हम बाद में देख लेंगे इन स्लाइटली मोर डिटेल, बट यू शुड नो दैट यू विल हैव अ असेक्सुअल वे एज वेल. So sexual and sexual both ways are seen for the reproduction. They also have a vegetative mode of reproduction. Something we'll see that when we go ahead. We'll move ahead. Okay. याद रखना fungi is a very big group. This kingdom is going to occupy a very large area on the planet. So like the number of species I will find is going to be around like 1 lakh. So आपको याद रखना that you have around like 1 lakh species of fungi. Species of fungi are seen throughout the world. नंबर इनका यहाँ पे काफी ज्यादा है and majority of them are going to behave like a decomposers. ये बात भी याद रखना that
अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके प्लैनेट पे मेजर डीकंपोजर्स कौन है, देन आपका आंसर सिंपल होगा, फंगा एंड द बैक्टीरिया. फंगा एंड द बैक्टीरिया आर द टू मेजर डीकंपोजर्स यू विल फाइंड ऑन द प्लैनेट अर्थ. ओके, सो याद रखना, द फंगा विल बी हैविंग सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, स्टोरेज ये लोग ग्लाइकोजन करते हैं, हेटेरोट्रॉप से ही है, एंड दे विल हैव समथिंग कॉल्ड एज अ हाइफे, एंड नेटवर्क ऑफ हाइफे इज गोइंग टू मेक द माइसेलियम. सो अगर आपको मशरूम दिख रहा है किसी सॉइल में ग्रो करता हुआ, उसके जो हाइफे होंगे या उसके जो माइसेलियम होगा वो 2 फुटबॉल फील्ड जितना स्प्रेड हुआ होगा, which you cannot see that, right? So even if you find a mushroom growing on the soil, the amount of mycelium they have and the network जो उसका होता है ना, जो स्प्रेड हुआ होता है सॉइल के अंदर, वो 2 फुटबॉल फील्ड जितना लंबा होता है. So that is something you will find in the fungi. So that's why they play a very major role as a decomposers. बहुत important role अपने यहाँ पे लोग play करते हैं. Now, as you can see over here, the fungi can have a septate hyphae or can have a aseptate hyphae. Aseptate के लिए यहाँ पे एक और यहाँ पे एक टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, that is your Cenocytic. That is the term I'll be using for my aseptate hyphae. Okay. Heterotropic, they show great diversity in morphology and habitat. They can be seen in a form of my molds on bread, butter, leather, pickle and rotten fruits. किसी फल को आप रख दो अपने कमरे में 10 दिन के लिए, and then you can find a fungi growing on them. सेम चीज ब्रेड के साथ भी हो जाएगी, ब्रेड को आप बाहर निकाल के रख दो कुछ टाइम के लिए, you will find the fungi will grow. Prefer to grow in warm and humid places. फंगाई हमेशा वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करना प्रेफर करता है. क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर नॉट प्लांट्स. सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज माय फंगल सेलुलोज, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ सेलुलोज. काइटिन याद रखना बस. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बता चुका आपको, दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, दे कैन शो द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट. रिप्रोडक्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं. सो रिप्रोडक्शन आपके 3 तरीके आपके यहाँ पे हो जाते हैं. एक होता है आपके फ्रेगमेंटेशन, वन इज गोइंग टू बी योर फ्रेगमेंटेशन. अच्छा एक बात बताना, अगर क्लास थोड़ा फास्ट लगे तो बोल देना बीच में. अगर लगे कि सर ये थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है या लगे कि कोई चीज रिपीट करनी है स्लाइड के अंदर, देन ऑल्सो लेट मी नो, आई कैन सी वॉट एवर यू राइट इन द चैट. ठीक है. सो फ्रेगमेंटेशन इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. एक फ्रेगमेंट आपका निकल के बाहर आ गया आपके हाइफे में से, and now that fragment can give rise to new fungi. Then you can have a budding. budding आप यहाँ पे देख पा रहे हो, budding आपने बच्चों में आपने ये पढ़ा होगा, this budding thing. The small outgrowth आपको यहाँ पे मिलेगा होते हुए, and the small outgrowth will become a different fungi, बाहर निकल के अलग हो जाएगा. Okay, so that is my budding. And then you have a fission. एक normal cell division की तरह यहाँ पे आपका fission भी आपके यहाँ पे हो सकता है. So you have a fission, budding and fragmentation are the 3 ways of the like vegetative mode of my reproduction. So fungal filament breaks into small pieces due to any reason, and now these pieces can form a new fungal filament. That is my fragmentation. Simple, बहुत simple है ये. Budding, sometime a bud is formed in a non-mycelia fungi. Basically होता क्या है ना, budding आपको मिलेगा कहाँ पे देखने के लिए, like you have an example of my Saccharomyces. Saccharomyces can show the budding over here. Saccharomyces is going to be a single celled. ये आपका सिंगल सेल्ड फंगाई होता है. बेसिकली मैं कहूंगा इट इज अ यूनिसेलुलर फंगाई. तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका सिंगल सेल फंगाई कौन सा होता है, देन यू शुड से Saccharomyces, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ यीस्ट. बेकिंग में काफी इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो ये लोग बडिंग करते हैं. दे आर नोन टू द बडिंग वेरी ऑफन. नाउ दिस बर्ड सेपरेट फ्रॉम द मदर सेल एंड फंक्शन एज अ यंग फंगाई. तो आपको यहाँ पे बडिंग होकर मिल गया, एंड नाउ इट विल फंक्शन एज अ यंग न्यू फंगाई. Then sometimes a fungal cell divides into 2 parts. Its nucleus also divides into 2 parts. Each cell receives a nucleus and starts working as a new cell. तो fission भी आपको commonly मिल सकता है फंगाई के अंदर होते हुए. अब बात करते हैं हमारे पे asexual reproduction के बारे में. तो asexual के अंदर आपको कुछ spores आपको याद रखने हैं. You will have some spores, like you will have something like your zoospores. These are my asexual spores. अब जब भी आपके सामने zoospore term आएगा, so these are the spores which will have the flagella. ये कुछ आपके वैसे स्पोर्स होते हैं जो आप फ्लैजेला जिसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड देन यू हैव अप्लानोस्पोर्स. एंड अप्लानोस्पोर्स जो आपके यहाँ पे होंगे,
These aplanospores are the one which will never have a flagella. These spores will never have a flagella. दोनों के दोनों स्पोर्स जो आपके बनाए जा रहे हैं, दे आर ऑल फॉर्म वाया माइटोसिस. असेक्सुअल है ना ये, सो दे आर ऑल फॉर्म वाया माइटोसिस. तो पहले तो आप ये बात यहाँ पे याद रखो कि असेक्सुअल स्पोर्स आपको ये दो नाम याद रखने हैं. वन विल बी हैविंग अ फ्लैजेला, दैट इज माय ज़ूस्पोर. तो ज़ूस्पोर आपके उन फंगाई में बनाए जाते हैं जो पानी के आसपास रहते हैं या पानी में रहते हैं. सो दीस फंगाई विल रिलीज देयर गैमेट्स इनटू द वाटर, सो दे विल रिलीज देयर स्पोर इनटू द वाटर, so they can swim. So zoospore will have a flagella and aplanospore will not have a flagella, and they are all my asexual spores. इसके साथ साथ you can have one more example. अच्छा स्क्रीन है दिख रही? Okay. Wait. आई होप अभी अभी दिखना बंद हुई है, स्टार्टिंग में आपको दिख रही थी. ओके ओके, नाउ डू यू वांट टू रिपीट द इनिशियल पार्ट या इज इट समथिंग व्हिच, हाँ राइट, अभी अभी देखना बंद हुई ना आपको. ठीक है. Alright, okay. So now what we'll find happening in this, na? So this is something we have done. These are the vector reproduction we'll be finding happening in this. These are all the fungi. Fission आपके यहाँ पे हो रहा है. Zoospores आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं, along with the aplanospore आपको बनाए जाते हैं, mitosis करके बनाए जाएंगे. So they will simply go to mitosis, and that's how the spores are getting formed. इसके साथ साथ you will find, along with this, we will find some other kind of spores are also seen over there. Like you will have one spore called as my conidia. So conidia is also a sexual spore. आपको याद रहता है कि कॉनिडिया तो चलो सेक्सुअल स्पोर है आपका यहाँ पे. ये बनाया कहाँ है? इट इज फॉर्म ऑन द टिप ऑफ द फंगाई. ये फंगाई के टिप के ऊपर आपको बनाया जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज फॉर्म एक्सोजिनसली. एक्सोजिनसली. कई बार आपके सामने यही सवाल आएंगे. सो कॉनिडिया इज वन ऑफ द सेक्सुअल स्पोर, और ये स्पोर आपके बनाए जाते हैं एक्सोजिनसली, दैट मींस एट द टिप ऑफ द फंगाई. सिमिलरली यू कैन हैव sporangiospores. Similarly, you will have sporangiospores. So sporangiospores are also my asexual spores. ये स्पोर्स आपके बनाए जाते हैं आपके फिलामेंट के अंदर, या मैं कहूंगा माइसिलियम के अंदर. So these spores are formed endogenously. अंदर के साइड पे बनाए जाते हैं. That's why we call them as endogenously. So these spores over there are called as sporangiospores, जो आपके endogenously आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे. अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर आपने कोनिडिया का बता दिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स का बता दिया, तो इन दोनों का क्या होगा? तो इन दोनों का भी आपका होता है एंडोजिनसली. ज़ूस्पोर्स और प्लानोस्पोर्स भी आपके एंडोजिनसली यहाँ पे बनाए जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही थी. ज्यादा थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पोर्स ओवर हियर. चलो थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. Asexual reproduction takes place by, again, same thing. So you can see over here, you can see the sporangium, and the sporangium will have the spore formation will happen. That is my sporangiospores. This, all the spores getting formed, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे sporangiospores. These are my asexual spores. अगर मैं कह रहा हूँ it's a asexual spores, तो by default समझ जाओ कि यहाँ पे आपका माइटोसिस हो रहा होगा. यहाँ पे आपका एक ही चीज हो रहा होगा, that's going to be the mitosis. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. They are formed in the sporangia. Sporangia मतलब वो fruiting body आपको जो दिख रहा था ना, that's a sporangia. Sporangium is formed at the tip of the fungal filament. The fungal filament on which the sporangium is formed is called as your sporangiophore. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम कह सकते हैं sporangiophore, राइट. इसके ऊपर आपको sporangium मिल जाए, और इसी sporangium के अंदर आपका यहाँ पे बना रहा है हमारा स्पोर. यहाँ पे numerous spores, sporangiospores, are present in the sporangium. They come out by rupturing of the sporangia and germinate to form a fungal filament. तो यहाँ से जो स्पोर निकल के बाहर आएंगे, ये जितने भी आपके यहाँ पे स्पोर निकल के बाहर आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे. एंड wherever they will come and fall. So ये जो स्पोर मेरे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, they will come and fall somewhere. जहाँ पे भी ये जाके गिरेंगे, वहां पे they can give rise to new fungi. They will give rise to a new set of mycelium. So that is what spores are going to do.
So these spores are endogenously producing sporangium. Sporangiosspore are of two types. You have a zoospore and you have your oplanospores. ये हम यहाँ पे already देख चुके हैं. We have your one is going to have the flagella. So zoospores will have the flagella always, and oplanospores will not have a flagella. Conidia के बारे में बता चुका हूं आपको मैं यहाँ पे. Conidia is something which is formed exogenously. Conidia formation आपका होता है आपका टिप के ऊपर फंगाई के ऊपर. That's called exogenously. अब ये वाला पार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं. दैट्स अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, आपके 2 हाइफे पास में आएंगे. अज्यूम दैट यू हैव 2 डिफरेंट फंगाई, बोथ बिलोंग टू, मतलब दोनों अलग अलग आपके जेनेटिकली अलग अलग आपके यहाँ पे फंगाई होंगे. तो यहाँ पे होता क्या है ना, दैट अज्यूम दैट दिस इज वन ऑफ द हाइफे ऑफ वन ऑफ द फंगाई, राइट. ये आपका खड़ा है कहीं पे और इसके पास में एक और आपका हाइफे आता है ग्रो कर करके, एंड दैट हाइफे बिलोंग्स टू अनदर फंगाई. तो फंगाई के अंदर वी डोंट से मेल एंड फीमेल. फंगाई के अंदर वी डोंट यूज अ टर्म लाइक अ मेल एंड फीमेल, रादर वी से प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन. तो यहाँ पे हम जेनेटिकली डिफरेंट बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि मेल एंड फीमेल आपका यहाँ पे, वी से इट इज अ प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन. तो आप यहाँ पे देखो, आपके 2 अलग अलग हाइफे, 2 अलग अलग फंगाई के आपके यहाँ पे पास में आ चुके हैं, और पास में आने के बाद दे हैव अंडरटेकन द फ्यूजन. दे हैव अंडरटेकन द फ्यूजन, दैट मींस यहाँ पे लोग अटैच हो चुके हैं. सो यहाँ पे जूम कैट कि यहाँ पे लोग इस पॉइंट पे यहाँ पे लोग अटैच हो चुके हैं. सो याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल द फंगाई इज नॉट कॉल्ड एज मेल एंड फीमेल. आई कैन से वन फंगाई स्ट्रेन कैन बी कॉल्ड माय प्लस स्ट्रेन, अदर कॉल्ड एज माय माइनस स्ट्रेन. अब यहाँ पे फ्यूजन हुआ क्यों? सो यू हैव अ फ्यूजन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यू हैव अ फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवर हियर. You have a fusion of plasma membrane. अब ये हमने यहाँ पे किया क्यों? The fusion of plasma membrane is being done so that you can exchange some nuclei over there. तो यहाँ पे हम फ्यूजन जब करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, यहाँ पे जब 2 फंगाई एक दूसरे से यहाँ पे अटैच करेंगे, this event is called as my plasmogamy. This event is called as your plasmogamy. प्लाज्मोगैमी करने का पर्पस क्या है कि आपने न्यूक्लियर को अपने यहाँ पे एक्सचेंज करना है. तो जो न्यूक्लियर ब्लू के पास है वो हम येलो में भेज देंगे. सो जो भी न्यूक्लियस आपके ब्लू के पास है वो हम यहाँ पे येलो के पास भेज देंगे. सो लेट मी मेक वन मोर पिक्चर जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ व्हाट विल हैपन, कुछ टाइम के बाद अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, सो दिस येलो हाइफे विल हैव 2 न्यूक्लियस. तो एक ही बनाया, दूसरा बनाता हूँ. you'll have 2 nucleus over here. So basically आपने यहाँ पे क्या किया, you have exchanged the nuclei. So जो भी न्यूक्लियर ब्लू के पास था वो आपने यहाँ पे येलो के पास आपने यहाँ पे भेज दिया. इसके बाद क्या होगा? Now before moving forward, every nuclei is going to be haploid. ये न्यूक्लिया भी मेरे यहाँ पे हैप्लॉइड होगा और ये वाला न्यूक्लिया भी मेरे यहाँ पे हैप्लॉइड होगा. So both the nuclei over there are going to be haploid in this. अब दोनों मेरे यहाँ पे न्यूक्लिया मेरे यहाँ पे हैप्लॉइड है. And now what will happen, these 2 nuclei which are there now in the same hyphae will undergo fusion. ये यहाँ पे करेंगे अपने यहाँ पे फ्यूजन. अब जब अपना ये लोग यहाँ पे फ्यूजन करते हैं, when they do this fusion over there, फ्यूजन करने के बाद you have a diploid nucleus आपका बन जाएगा यहाँ पे. So अगर आप थोड़ी देर के बाद आपके यहाँ पे आप देखोगे, so when you come over here after some time, so how this is going to look like, you will have 1 nuclei will be seen now, क्योंकि दोनों न्यूक्लिया आपके फ्यूज हो जाएंगे. So assume कर लो कि यहाँ पे आपका क्या हुआ. You have your hyphae, and now I will just draw a single nuclei inside this, and this nuclei is a fusion of 2 nuclei. 2 nuclei जो मेरे वहां पे थे उन्होंने फ्यूज कर लिया, and now you have this nuclei, and this nuclei is my diploid nuclei. तो आपको याद रखना है कि आपने प्लाज्मोगैमी कर लिया, आपने न्यूक्लिया को एक्सचेंज किया, उसके बाद your nuclei will undergo fusion. So याद रखना, the nuclei undergoes fusion. So nuclei undergo fusion. जब न्यूक्लिया का यहाँ पे फ्यूजन होगा, इस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैरियोगैमी. कैरियोगैमी करने के बाद नाउ यू हैव अ न्यूक्लिया व्हिच इज डिप्लॉयड न्यूक्लिया, एंड नाउ दिस डिप्लॉयड न्यूक्लिया विल अंडरगो मियोसिस. याद रखना, दिस डिप्लॉयड न्यूक्लिया विल अंडरगो मियोसिस. अब यहाँ से और कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ से आपका मियोसिस होगा. So जब आपका मियोसिस यहाँ से होगा, तो जब डिप्लॉयड न्यूक्लिया है, नाउ यू नो दिस वेरी केयरफुली, लाइक यू नो दिस वेरी क्लियरली,
दैट अगर मेरा यहाँ पे एक डिप्लॉयड न्यूक्लिया है, इफ आई हैव अ डिप्लॉयड न्यूक्लिया, अगर ये मियोसिस करेगा तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया मुझे यहाँ पे मिलेंगे, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया। जब मेरे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, सो व्हाट विल हैपन इन दिस, यू विल हैव दिस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया विल टर्न इनटू 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, दिस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया विल टर्न इनटू योर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, सो दे विल टर्न इनटू अल्टीमेटली इनटू माय हैप्लॉइड स्पोर्स। और यही तो हमें बनाना था, यही तो होता है सेक्सुअल रिप्रेशन के अंदर। आपका न्यूक्लिया बनने के बाद द न्यूक्लिया विल अंडरगो द मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद इट विल गिव यू 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, और यही चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी। तो आपके यहाँ पे जो डिप्लॉयड न्यूक्लिया है, यहां से आपका होता है थर्ड स्टेप जो आपके यहाँ पे होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मियोसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। प्लाज्मोगैमी, दैट इज गोइंग टू बी अटैचमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द 2 पाइपे ओवर देयर। देन एक बार आपने न्यूक्लिया को अपने यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया, देन यू कैन गो फॉर अ कैरियोगैमी, देन यू कैन गो फॉर अ कैरियोगैमी, दैट मींस योर 2 न्यूक्लिया जो आपके आ चुके हैं साथ में एक हाइफे के अंदर, दे विल अंडरगो द फ्यूजन, राइट। सो न्यूक्लिया का जो फ्यूजन है उसे हम कह रहे हैं यहाँ पे कैरियोगैमी, एंड देन यू विल फाइंड द मियोसिस इज बीइंग डन। जब आप मियोसिस यहाँ पे कर लेते हो सक्सेसफुली, you will find that will lead to a formation of my haploid spores। तो ये इवेंट आपको याद रखना है, these are the things you have to know happening। so sexual reproduction में ये 3 चीजें याद रखना, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ये 3 चीजें इस तरीके से आपके यहाँ पे रन की जाती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। सेकेंड बात आपको यहाँ पे याद ही रखनी है कि कई बार क्या होता है कि आपने न्यूक्लिया एक्सचेंज कर लिया, उसके बाद तुरंत आपका कैरियोगैमी नहीं होता। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग, अज्यूम दैट कि आपका यहाँ पे हाइफे है, okay, just wait a minute, right, assume that you have a hyphae over here, and in this hyphae you will have 2 nuclei, से आपके पास यहाँ पे 2 न्यूक्लिया है यहाँ पे। now this hyphae has 2 nuclei and it has decided कि वो अभी कैरियोगैमी नहीं करेगा, so such hyphae is in my dikaryotic phase, dikaryotic phase। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो हाइफे दैट इज अ डायक्रोटिक फेज। सो हाइफे का प्लान क्या है कि वो भी अपना मियोसिस वो अपना यहाँ पे कैरियोगैमी करेगा नहीं, और ऐसे हाइफे का नंबर बढ़ाएगा। सो नाउ यू हैव अ डायक्रोटिक फेज एंड नाउ यू विल फाइंड दिस हाइफे विल इंक्रीज इन दिस नंबर, सो यू विल फाइंड ओवर देयर द नंबर ऑफ हाइफे नाउ आर गोइंग टू इंक्रीज इन दिस। तो ये जो हाइफे आपके यहाँ पे है, इनका नंबर आपके यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो नाउ यू विल फाइंड द नंबर ओवर हियर इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, अभी तो एक ही था आपका यहाँ पे, देन यू विल फाइंड इज गोइंग टू इंक्रीज इन द नंबर। So basically what will happen, after some time we will have multiple hyphae and all those hyphae will have 2 nuclei will be seen in them। तो याद रखना कई बार आपके जो फंगाई होते हैं, दे चूज टू रिमेन इन द डायकैरियोटिक स्टेज, वो कैरियोगैमी तुरंत नहीं करेंगे एंड दे विल ट्राई टू रिमेन देमसेल्फ इन द डायकैरियोटिक स्टेज के अंदर, ताकि ऐसे करके वो हाइफे का नंबर यहाँ पे बढ़ा सके। So this is what you find in the fungi। So you can have a stage called as my dikaryotic stage। So after plasmogamy you can have a dikaryotic phase and then you will have the karyogamy। जब उसे लगेगा कि काफी हाइफे बन चुके हैं, then they can go for a karyogamy and then you can move forward with that। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, this is what you find happening in my sexual reproduction। So dikaryotic phase जो होता है वो आपको सारे ग्रुप में आपको नहीं मिलता, आपको सिर्फ 2 ग्रुप के नाम यहाँ पे याद रखने हैं। एक आपका यहाँ पे होगा बेसिडोमाइसिटिस, और दूसरा ग्रुप आपका यहाँ पे आएगा दैट इज माय एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस। These are the only 2 groups which will have a dikaryotic phase। ये सवाल नीट में पहले भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है, so you should know that कि किसमें मिलता है किसमें नहीं मिलता। So these are the 2 groups of fungi which will show the dikaryotic stage। Okay, तो यहाँ पे चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है sexual reproduction कहते हैं। यहाँ पे plasmogamy, the first stage of my sexual reproduction। In this stage 2 sex cells fuse with each other but their nuclei do not fuse, due to which a single cell has a 2 nuclei। Something I've told you this, that's a plasmogamy। In phycomycetes, fusion of 2 haploid nuclei immediately result in the diploid cells।
सो फाइकोमाइसिटिस में वो लोग क्या कह रहे हैं ना, दैट आफ्टर प्लाज्मोगैमी यू विल हैव द केरोगैमी, तुरंत हो जाएगा। सो फाइकोमाइसिटिस के अंदर आपका डायक्रिटिक स्टेज आपको कभी नहीं मिलता। However, in my other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an interweaving diacritic stage is observed, जहां पे आपको 2 न्यूक्लिया मिलेंगे पर सेल, जो मैंने आपको दिखाया था वहां पे। दिस इज समथिंग माय डायक्रिटिक स्टेज, जो आपको यहाँ पे देखने के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। So now you have an N+N condition over here that will occur in these 2 groups of your fungi. Such a condition is called as my dikaryon, and the phase is called as my dikaryophase of the fungus. This is something you have to know. Now, after this, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप पिक्चर को थोड़ा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे, then what you can see, you can have your 2 fungi, separate fungi coming together. Plasmogamy आपके यहाँ पे हो चुका है, and then you have a diacritic stage can be seen in this. Okay. So kerogamy, in this stage, the nuclei present in the cell fuse with each other to form a diploid nucleus. So in this stage, nuclei present in the cell fuse with each other to form the diploid nucleus, which is known as a synkaryon. Okay. आप kerogamy याद रखो, ये टर्म आपके सामने नहीं आएगा, but you should know that this fusion will be called, diploid nucleus is known as a synkaryon. और diploid nucleus के बाद आपने क्या होगा? You will find meiosis will happen. In this stage, meiosis will take place in the diploid nucleus, due to which you will find haploid nuclei or haploid cells are being formed, जो मैं आपको already बता चुका हूँ. These haploid nuclei will turn into haploid spores, and now they can fall on the ground and can give rise to a new fungi. याद रखना, जब आपके haploid spore आपके यहाँ पे बन गए ना, ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे, and they can give rise to new fungi. They can give rise to a new fungi. थोड़ा अजीब बना है fungi यहाँ पे, but please understand. That's how they can form different kind of fungi they can form. So ये आपका यहाँ पे हो गया. So this is all of you in terms of your particular fungi का sexual reproduction. Let's solve some questions. Which of the following is wrong about a fungi? इनमें से कौन सी चीज आपके यहाँ पे गलत है? Which of the statement is wrong? Quickly answer in the chat. कौन सा आपके हिसाब से यहाँ पे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा? कर सकते हो बेटा, आप लोग कर सकते हो. आपको अपने लैपटॉप के पास में जाना है, जहां से आप इमोजी भेज देते उस लैपटॉप के पास में जाओगे एंड क्लिक ऑन द ABCD के ऊपर. Which of the following is wrong for the fungi? Raju Chauhan has given us the answer right now. Anyone else? So one of the school has given me the answer. उसके अलावा so statement B जो आपका यहाँ पे है, right, Ludhiana, that's true, is going to be an incorrect statement, क्योंकि all the fungi possess purely cellulosic cell wall. ये बात आपकी गलत है यहाँ पे. Fungi will always have a cell wall made of my chitin, so that's why, right, that's going to be not the correct answer. That's an incorrect statement and that's a correct answer. One of the major component of the cell wall of the fungi is going to be what? ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप जल्दी से कर सकते हो. Right, military school Ludhiana. One more school has given me the answer, and right, chitin. Aristotle classified animals in the 2 groups on the basis of what? He classified animals on the basis of the presence of RBC and absence of RBC. So that is your option 4. ये हम पहले भी कर चुके हैं, if you remember this. Okay, next question. How many kingdoms were included in the domain Eukarya? इसका आंसर बताइए मुझे यहाँ पे. As per the 6th kingdom classification, आपके यूकैरिया डोमेन के अंदर आपके कितने किंगडम आते हैं? Someone is saying option A. यूकैरिया डोमेन के अंदर I will find 4 kingdoms are going to come, which will include your fungi, plantae, Animalia, one more Protista. As per 3 domain classification given by Carl Woese, यूकैरिया के अंदर आपके यहाँ पे 4 किंगडम आएंगे. So this is going to be your option 3. Thread-like filament of fungi are known as what? जो thread-like structure आपको जो मिलता है fungi के अंदर, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बताइए. That's true.
दे आर कॉल्ड एज माय हाइफे। एंड नेटवर्क ऑफ हाइफे जो आपके यहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ माइसिलियम। सो बिल्कुल सही, डी आपके यहाँ पे ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। विद रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस। आप अब सेक्सुअल साइकिल को आप देख चुके हैं यहाँ पे, अब आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस आपके यहाँ पे सही से फॉलो किया जाएगा। ऑलराइट, कुछ लोगों ने यहाँ पे आंसर कर दिया है एंड जिनका भी आंसर यहाँ पे आ चुका है सबका आंसर यहाँ पे सही है। यू विल हैव अ प्लाज्मोगामी, कैरियोगामी एंड द meiosis is something which will be happening with the fungal sexual cycle. Okay, now let's talk about my one of the first group of my fungi, that's my Phycomycetes. Phycomycetes are found in aquatic habitat. They are seen to be grown on a decaying wood, moist, damp places के अंदर ये ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे. They are my obligate parasites on the plant. ये आपके होते हैं यहाँ पे आपके obligate parasites. Now, I won't say हर कोई होता है obligate parasites, but many of them are going to be parasite on the plants. अब यहाँ पे आपको एक की पॉइंट याद रखना है that they don't have septa. They will have a aseptic condition. So that is why sinusitic term आपको याद रखना है. So sinusitic, that means they will not have any kind of septa formation and they will be branched. Branching आपको यहाँ पे मिल जाएगी. So Phycomycetes are the one in which you will find they will be sinusitic, right? And they will be having like they will have a aseptic condition आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए. Okay. एग्जाम्पल याद रखना आपको यहाँ पे नीट एग्जाम में एग्जाम्पल के बेस आपके सवाल आएंगे. सो एग्जाम्पल आपके यहाँ पे क्या आएंगे? यू हैव एल्ब्यूगो, म्यूकर एंड द राइजोफस. Asexual reproduction occurs by zoospores, planospores and conidia. So these are the ways through which you can asexually reproduce कर सकता है. और एग्जाम्पल आपके यहाँ पे तीन आएंगे, एल्ब्यूगो, म्यूकर एंड राइजोफस. अगेन स्क्रीन इज नॉट विजिबल. अच्छा, बाकी लोग बता दो मुझे यहाँ पे बेटा, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यहाँ पे नहीं दिख रही. Give me a thumbs up if you are able to see the screen. Give me a quick thumbs up if you can see the screen. People are like, नहीं हम नहीं देंगे thumbs up. नहीं दिख रही. गुरदासपुर स्कूल को यहाँ पे नहीं दिख रही स्क्रीन. You should be, but बाकी स्कूल को तो बेटा दिख रही है यहाँ पे. I think नेटवर्क का इशू हो सकता है बेटा आपके साइड पे, because all the other people can see the screen. Okay. So I would recommend to change the network generally. Military School गुरदासपुर, अगर आप अपना यहाँ पे नेटवर्क चेंज करोगे then you should be able to see the screen. ठीक है, try that. Or just disconnect and log in again. Okay. These are all your fungi and the you can find all the sporangium आपको यहाँ पे दिख रहा है. You can see the spore formation यहाँ पे हो रहा होगा. You can see all those things. Let's start with the Ascomycetes. Ascomycetes को आप even कहते हो यहाँ पे as a sac fungi. You also call them as a sac fungi. Okay. Ascomycetes के बारे में याद रखना that they will have the dikaryotic stage. तो dikaryotic stage आपको यहाँ पे मिलेगा. Now there's one thing I want to tell you in this. Assume करो that ये now you know how the sexually they are going to reproduce, right? You have plasmogamy, you have a karyogamy, you have a meiosis. Imagine करो that you have some hyphae over here. You have some hyphae. और ये सारे के सारे हाइफे जो आपके यहाँ पे है ना, दे आर इन माय डायक्रेटिक स्टेज पे अटके हुए हैं. सो ऑल दिस हाइफे आर गोइंग टू हैव योर 2 न्यूक्लिया. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस सही से. सो यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लिया आपको यहाँ पे मिल रहे हैं हर एक सेल के अंदर. सो आई कैन क्लियरली से दैट ऑल दिस हाइफे आर इन द डायक्रेटिक स्टेज. कह सकता हूँ ना मैं दैट ऑल दिस हाइफे आर गोइंग टू बी इन द डायक्रेटिक स्टेज के अंदर. सेप्टा फॉर्मेशन मिलेगा. सेप्टा फॉर्मेशन सिर्फ आपको नहीं मिलता आपके फाइकोमाइसेटिस के अंदर, उसके अलावा बाकी सबके अंदर आपको सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो सेप्टा फॉर्मेशन इज नॉट सीन ओवर हियर बट यू विल फाइंड द सेप्टा फॉर्मेशन एवरीवेयर एल्स. ओके, सो नाउ यू हैव अ कंडीशन. तो यहाँ पे होता क्या है ना कि आपके जो हाइफे होते हैं जहां पे यू हैव अ डायक्रेटिक स्टेज, दैट हाइफे ओवर हियर नाउ इज कॉल्ड एज माय एस्कस. ये जो हाइफे मेरा होता है थोड़ा सा आपका अलग दिखने लगता है. जो मेरा हाइफे था जिसके अंदर था आपका डायक्रेटिक कंडीशन, दैट हाइफे लुक्स स्लाइटली डिफरेंट नाउ एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज माय एस्कस. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एस्कस. तो ऐसे कई सारे एस्कस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. These all hyphae which are going to be in a diacritic condition, you will start calling them as a एस्कस. अब ये जो आपके एस्कस है, सारे एस्कस सारे साथ में मिलके दे मेक अ फ्रूटिंग बॉडी.
all these ascus will come together and they will form a fruiting body, and that fruiting body is called as my ascocarp. That fruiting body is called as my ascocarp. Right? So you have an ascus over here, and this fruiting body over here will be called as your ascocarp in this. So now you have a fruiting body, which is going to be ascocarp over here, and within the fruiting body, now you know what will happen. इसके अंदर ही आपका यहाँ पे होगा केरोगैमी, आपका यहाँ पे होगा, इसके अंदर ही आपका यहाँ पे होगा मियोसिस, और इसी एस्कोकार्प के अंदर आपके यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स आपके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे. सो द स्पोर्स जो आपके यहाँ पे अंदर बनेंगे ना, वॉट एवर द स्पोर्स आर गेटिंग फॉर्म इनसाइड देम. सो यहाँ पे देखो, याद रखना, यू विल हैव द मियोसिस विल हैपन. सी अल्टीमेटली क्या होगा, फ्यूजन होगा. सो नाउ यू नो ना दोस थिंग, आई वोंट बी ड्राइंग ऑल दोस थिंग्स अगेन. सो यू विल हैव अ केरोगैमी आपके यहाँ पे हो जाएगा. You will find your keratogamy will happen. Then you will find your meiosis will happen. केरोगैमी आपका यहाँ पे होगा, मियोसिस आपका यहाँ पे होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बन के मिलेगा यहाँ पे? You will find your sexual spores will get formed, and those spores which have been formed after the meiosis are my ascospores. So कई सारे एस्कोस्पोर्स आपके यहाँ पे बन के रेडी हो जाएंगे. सो नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर, हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स विल बी रेडी ओवर देयर. अब आपके सामने नीट में ये सवाल आ सकता है कि आपके जो एस्कोस्पोर्स बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? टिप पे बनाए जाते हैं या फंगल के इनर साइड पे बनाए जाते हैं? देन आपका आंसर यहाँ पे होगा एस्कोस्पोर्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड एंडोजेनसली. दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड एंडोजेनसली. ये सब याद रखना, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड सवाल आपके सामने आ सकता है. तो एस्कोस्पोर्स आर ऑलवेज गेटिंग फॉर्म्ड एंडोजेनसली. ठीक है, सो ये एंडोजेनसली आपको बनाए जाएंगे यहाँ पे, एंड दीज आर माय सेक्सुअल स्पोर्स. ऑन द अदर हैंड, अगर आपसे कोई पूछता है कि एस्कोमाइसिटिस के अंदर आपके असेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, देन यू कैन टेल देम असेक्सुअल स्पोर में यहाँ पे होंगे कोनिडिया. असेक्सुअल स्पोर जो यहाँ पे होते हैं, दैट्स माय कोनिडिया, जो आप जानते हो इट इज फॉर्म ऑन द एक्सटर्नली, आपके बना के हुए आपको मिल जाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. इसके अलावा यू विल हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स. ये आपका कुछ मेन पार्ट है. You should know that you have an ascus formation. You should know the fruiting body. Ascocarp is nothing but my fruiting body. जो fruiting body आपके यहाँ पे होती है, that fruiting body is called as my ascocarp, right? And within that fruiting body, what will happen over here? That you will have this ascospores are getting formed, और फिर वो burst होगा और वो आपके सारे spores आपके रिलीज कर दिए जाएंगे. And once those spores are getting released, they can give rise to new fungi. बस इतनी चीज आपके यहाँ पे होती है. तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई क्या है, and let's see the example जो हमें यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. Called as my sac fungi. Member of this class are mostly multicellular, rarely unicellular, but आपको मिलेगा क्या? मिलेगा आपको यहाँ पे yeast. Yeast आपका इसके अंदर ही आता है, and that's going to be my unicellular. Mainly they will be saprophytic, decomposers, parasitic, coprophilous, मतलब काउ डंग में ये ग्रो कर जाते हैं. माइसिलियम आप जानते हो, सेप्टा आपको मिलेगा, एंड देयर विल बी ब्रांच. सो सेप्टा फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड द ब्रांचिंग इज समथिंग व्हिच इज कॉमनली सीन इन देम. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया कोनिडिया, मैंने बताया था आपको यहाँ पे कोनिडिया के थ्रू बनाए जाएंगे असेक्सुअल स्पोर्स. और कोनिडिया आपका हमेशा बनता है एक्सटर्नली, मतलब इट इज फॉर्म एक्सोजेनसली. एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दे आर कॉल्ड एज माय एस्कोमाइसिटिस. सो आपको 3 स्टेज आपको मिलता है आपके यहाँ पे, प्लाज्मोगैमी, केरोगैमी एंड मियोसिस. दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन देम. So देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 fungal hyphae of mycelium come close to each other and their cell fuse to form the dikaryon. पहले ही बोला था आपको यहाँ पे, you will have a dikaryotic stage in them. After this, the outgrowth of the originate from the dikaryon, which is called as my escogenous hyphae. मतलब basically वो hyphae आपके distinct हो जाते हैं. This escogenous hyphae develops and forms a sac-like structure called as my ascus. So they will form a sac-like structure called as my ascus. Now both nuclei reach to the ascus and fuse to form a diploid nucleus. Something we have discussed this thing. इसी ascus के अंदर आपके दोनों न्यूक्लिया बाद में फ्यूज करेंगे, और ये सारे ascus मिलके बनाता है आपका fruiting body, and that fruiting body is called as my ascocarp. Now ascus protected by some fungal filament form a fruiting body called as the ascocarp, in which reductional division, that's how meiosis will happen, leading to formation of haploid ascospores. ये बात आपको इसके अंदर रखनी है याद. पिक्चर को आप बाद में आराम से देख सकते हो कि कैसे आपके यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो रहा है, केरोगैमी आपका हो रहा है यहाँ पे, देन मियोसिस करके. सो ये आपको स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस आर ऑल स्ट्रक्चर व्हिच आर गेटिंग फाउंड ओवर देयर, दैट्स माय एस्कस. और ये जो एस्कस आपको यहाँ पे दिख रहा है, दे विल ऑल कम टुगेदर, विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज माय एस्कोकार्प. अब ये बाद में आपका बर्स्ट होगा,
एंड देन उसमें से आपके सारे के सारे आपके यहाँ पे एस्कोस्पोर्स निकल के बाहर आपके यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, राइट. एग्जाम्पल अब यहाँ पे ध्यान रखते हैं. एग्जाम्पल एक तो आपने देखा था सेक्रोमाइसिस, ईस्ट तो है ही एग्जाम्पल, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर यूनिसेल्युलर फंगाई. और क्या एग्जाम्पल है आपके यहाँ पे देख लेते हैं. न्यूरोस्पोरा याद रखना. न्यूरोस्पोरा इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फंगाई विच इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. इसको हम फील्ड ऑफ जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल स्टडीज के लिए. न्यूरोस्पोरा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ माई एस्कोमाइसिटिस, जिसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, राइट. देन वी हैव एस्परजिलस, पेनिसिलियम. पेनिसिलियम आपने सुना हुआ है. पेनिसिलियम इज समथिंग विच इज यूज्ड टू मेक द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. तो इसमें से हम बनाएंगे हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक, तो ये भी आपको याद हो जाएगा. वो था ना, क्या नाम था उनका, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. उन्होंने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई थी वो आपके यहाँ पे पेनिसिलिन ही थी, फ्रॉम द पेनिसिलियम. सो ये फंगा याद रखना. ईस्ट याद रखना, इसका इस्तेमाल करके हमारा ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं. सैक्रोमाइसिस, ईस्ट आपको हो गया यहाँ पे, राइट. न्यूरोस्पोरा भी याद हो जाएगा अब आपको, जेनेटिक स्टडीज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. एस्परजिलस जो होता है ना, एस्परजिलस आपका एक फंगा है जिसमें से हमें सिट्रिक एसिड मिल सकता है. ये यहाँ पे एक ग्रुप है फंगाई का, इसमें एक स्पीशीज आती है जिसमें से हमें मिल सकता है हमारे यहाँ पे सिट्रिक एसिड. अब आप बोलोगे कि सर सिट्रिक एसिड क्या होता है. मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ. मतलब सिट्रिक एसिड इज समथिंग जो हम कमर्शियल लेवल पे काफी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने वो लिम्का जूस देखा होगा, लिम्का कोल्ड ड्रिंक आपने देखा होगा. देन वो लेमन का भी ड्रिंक आता है, आई डोंट नो द नेम, नींबूस करके आ रहा होता है, राइट. सो ऑल दोस ड्रिंक्स व्हिच आर बीन फॉर्म ना, दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड. उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में आप आर्टिफिशियल सिट्रिक एसिड आप डालते हो. तो ये सब जो आप कमर्शियल लेवल पे बनाते हो ना, तो कमर्शियल लेवल पे बनाने के लिए यू कैन यूज दिस एस्परजिलस. I can actually use this species called as my Aspergillus niger. ये स्पीशीज की मदद से आई कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ माई सिट्रिक एसिड. अब मैं इतना सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल याद हो जाए. सो यू हैव ईस्ट, यू हैव एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा. मोरेल्स एंड ट्रफेल्स आर द फंगाई जिनको हम खा सकते हैं. बोथ द फंगाई एडिबल फंगाई, बिल्कुल आप इन्हें पका के खा सकते हो. सो मोरेल्स एंड ट्रफेल्स आर द फंगाई व्हिच आर एडिबल. तो ये आपको याद रखना है. These are the examples which you have to know in terms of my ascomycetes. I would strongly recommend कि आप लोग NCERT ध्यान से पढ़ लो एक बार in terms of my ascomycetes and along with the other traits, so that कल हम लोग जब वापस मिले, so we can complete the fungi and we can solve some good number of questions. कुछ अच्छे लगभग 10-12 क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर पाए. Let's try to do that. ठीक है. So alright people, that's it from my side. आपका लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म. अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल यहाँ पे आप पूछ सकते हो. आई होप जो भी हमने यहाँ पे कराया गया है वो आपको रिवाइज करने में आसानी हुई होगी. यू हैव स्टडीड ऑल दोस थिंग्स एंड यू नो ऑल दोस थिंग्स राइट नाउ, बट आई होप यू आर एबल टू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. इन केस इफ यू हैव नो क्वेश्चंस देन लेट्स रैप दिस अप. मिलते हैं हम लोग वापस से कल एट द सेम टाइम. ऑलराइट, चलो बाय एवरीवन.